Assalamu alaikum everyone and Ramzan Mubarak. Myself Rasna Naz as your host. I'm clinical nutritionist by profession and working as project coordinator at HolaCure. HolaCure is a healthcare app, a savior in this pandemic, which is in the launching process with incredible features of online appointments connecting patients and doctors, free video and audio consultations, home and clinical ये मैं अभी visits, लाइव कर रहा 32 plus medical categories, financial assistance, easy payment methods, and it ensures your privacy and health related data. You can book your appointments by reviewing a doctor and book the appointment. So let's begin our session with our honorable guest, Zurez Riaz. He is the founder of Corona Recovered Warriors. He's LUMS graduated and a singer, mashallah. He set up a Facebook group to help coordinate plasma donations for people fighting COVID situation from past a year. He has been featured in CNN, PTV, Sama TV, and various other renowned platforms. Assalamu alaikum, Zurez. How are you? Assalamu alaikum, Rasna. Thank you so much for such a lovely introduction. I'm honored to be a part of your show. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are honored for you are here on our platform. So, Thank you Zurez, very much. we want to talk about how you came through this idea. Like I know the lockdown started like 13 March. We were at our colleges, universities, and Pakistan got locked down. We didn't knew anything about it. हमें कुछ idea नहीं था क्या हो रहा है. And it came on. Then how you came up with this? So basically, the idea was to connect plasma donors initially. Basically, the group started in the last week of May, and primarily the main hype started in the first week of June. And the reason I started this group was to engage all the Corona recovered warriors to this platform so that we can have them on one national forum, which is widely available to the masses. And secondly, इसका जो मकसद था वो उस वक्त ये था कि प्लाज्मा ट्रायल्स चल रहे थे and there was no national forum where people could actually connect themselves and how we are going to get in touch with those who have recovered from COVID. और उस वक्त इतना ज़्यादा पैरानोया था कि पता किस तरह चलेगा कि कोविड से जब इंसान गुजरता है तो इसको किस तरह से कोप अप किया जाता है मेंटली भी एंड फिजिकली भी एंड people were basically engaged to share their experiences as well. It was not just limited to plasma, it was later on expanded into a huge health forum where people Yes, talk about cancer, dialysis, kidney related yes. issues, and liver transplant, and almost every other disease. So yeah, initially I started this because I wanted to give them a platform where they could connect themselves and I could help them get in touch with someone who is COVID recovered. तो इस तरह से बेसिकली मैंने एक वेबसाइट बनाई plasmaportal.org जहाँ पर हमने रजिस्टर किया सारे कोरोना के रिकवर्ड लोगों को भी जो वॉलंटियर करना चाहते हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए. So that was one way of getting all the people on one forum जिसमें एक consolidated list मैंने बना दी and then उस लिस्ट से लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया उन लोगों के साथ जिनको बहुत ज़रूरत थी प्लाज्मा डोनर्स की. तो या दैट वाज द मेन रीजन. इसकी खैर अब आपको पता है डायमेंशन इसकी बहुत ज़्यादा है. ये अब Yes, इसमें फूड डिलीवरी भी हो रही है, फ्री मास्क मिलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते हैं. Any kind of injection can be availed through this platform. लोगों को इससे हेल्प हर तरह की डायमेंशन में मिलना शुरू हो गई है. सो प्राइमरली दैट वाज द रीजन कि एक सेंट्रल यूनिट बना दिया जाए जहाँ पर सारे लोग कनेक्ट करते हैं. yes. Okay. जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कितने आप मेंबर्स थे, कैसी टीम थी दैट यू गो विद इट, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया है फॉर प्लाज्मा डोनेशन एंड एवरीथिंग. हाउ डिड यू मैनेज इट? So basically, that is the beauty of the digital forums. When you have a digital forum, everyone is reaching that specific one forum, and uska
benefit क्या होता है कि if I'm sitting in Gilgit Baltistan, let's say, I'm going to reach that form and I'm going to register as a plasma donor. So I would get that data where I would be able to see कि कौन इस वक्त किस शहर से अवेलेबल है और इस सेंट्रल नेटवर्क को बनाने का मकसद भी यही था कि हम लोग इसको एक गिलगित बल्तिस्तान, सवात और लाहौर और ये मुख्तलिफ इनफैक्ट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हमारे पास यूएई और हमारे पास यूएस, यूके, इंडिया, इन जगहों से भी प्लाज्मा डोनर्स अवेलेबल हो गए थे एंड हाउ वी मैनेज्ड टू कनेक्ट देम वाज दिस वन सेंट्रल फेसबुक पोर्टल जहाँ से लोगों की क्वेरीज आती थी और उनको रीडायरेक्ट किया जाता था। तो इसमें मैन पावर की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट थी तो हमारे ग्रुप की मॉडरेशन की थी। उस मॉडरेशन को Yes. थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना जरूरी था एंड फॉर दैट up until 60,000 I managed everything myself. 60,000 members जब तक थे तब तक मैं अकेला मैनेज कर रहा था, बट the day it crossed 60,000 members, I was struggling to manage it. So इस वजह से I engaged my brother and sister और उसको उनको मैंने admin बनाया and then they started helping me out. उसके बाद when it crossed beyond 150,000 members तो मुझे अपने कुछ cousins को ऐड करना पड़ा, जैसे होता है हर घर में कि आप अपने सबसे पहले Yes. बहन भाइयों को कहते हो, देन आप अपने cousins को करते हैं। सो वही हुआ, कजन्स को किया एंड देन जब ये 2-2.5 लाख मेंबर्स क्रॉस कर चुका था तो आई स्टार्टेड एंगेजिंग ऑल द वॉलंटियर्स ऑन द फोरम एज वेल एज इन माय सोशल सर्कल जिनको वॉलंटियर करने का शौक है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एंगेज होने का शौक है, वो सारे हमारे पास अवेलेबल हुए एंड उन्होंने मॉडरेटरशिप ले ली. So basically, that was one Yes. way of managing everything. We had around 38 moderators for the group when we saw the first peak. And during the second peak, क्योंकि second peak वैसे ही छोटी थी, तो उस छोटे पीक की वजह से हमारे फोरम पे लोड भी कम था और उस लोड कम होने की वजह से हमें उतने मॉडरेटर्स की ज़रूरत नहीं थी. सिमिलरली हम लोगों ने ऑफ पीक टाइमिंग्स में वॉलंटियर्स को फ्री कर दिया था कि आप अपनी एक्टिविटीज को जारी रखें सो दैट यू नॉट बाउंड फॉर दिस ग्रुप. थर्ड पीक में चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, so we are managing everything with 3 or 4 members and that is how we are managing the third wave now. इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं लगता अब क्योंकि शायद ट्रेनिंग हो चुकी है. बस हैंडल कर चुके हैं हम लोग और हमें आइडिया हो चुका है कि किस तरह चीजें स्ट्रीमलाइन करनी है. तो या Yes. Obviously, it's been a year and you are doing it great. Mashallah. थैंक यू वेरी मच. What I want to ask, what was the main hurdle? I mean, लोग वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि कुछ लोगों की मिथ्स भी होती हैं और कुछ इस तरह भी होता है कि कभी कभी डिलीवरीज टाइम पे नहीं होती या कॉन्टेक्ट्स नहीं मिल रहे होते. सो वो वाली जो सारी हर्डल्स थी, दैट प्रेशर, हाउ यू हैंडल दैट? Okay, so ये बहुत बड़ा challenge था. For sure, in the first and the second wave, it was a huge challenge because we used to get extremely stressful calls where people used to literally cry on the phones कि मेरी मदर को बचा लें, मेरे वाले साहब को बचा लें, मेरे भाई को बचा लें, मेरी बहन को बचा लें. So we used to get all these calls and it was very hard to tell them that we don't have a donor yet and we don't have the facility that you're asking for. तो ये issues हमारे बहुत ज़्यादा इसमें आए हैं. इसमें no doubt हमें challenges पहले बहुत ज़्यादा आते थे and of course since पूरी दुनिया को ही नहीं पता था कि इसको किस तरह mitigate करना है, of course we never knew कि क्या इसको manage करने का तरीका होगा. But वी नेवर लॉस्ट होप एंड हमने अपना एजेंडा यही रखा हुआ था कि हम अपने मेंबर्स की जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों की भी होप को कहीं ज़ाया ना होने दें, उन लोगों को एंगेज करके रखें एंड वी शुड गिव देम एटलीस्ट समथिंग जहां से उनको शायद कोई हेल्प मिल सके.
Yes. We used to help them through different organizations as well. I would like to mention the Blood Volunteers of Pakistan, Zainal Hmm. Abidin and Asad Qasim. They are doing great job. And मैं तो ब्लड का जो डिपार्टमेंट है उसको इसलिए भी डील नहीं कर पाता क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा और कोविड के रिलेटेड ही अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड होता है. बट ऑनेस्टली दे आर डूइंग सुपर बिकॉज उनकी हेल्प के बावजूद हम लोग भी मैनेज ना कर पाते हैं इन सारे Yes. केसेस. Totally. Sometimes they ask us for help, sometimes we go to Yes. them के हमें help out कर दें. So yeah, That's yeah, so that was the teamwork. इस वक्त organizations ने selflessly हमारे साथ जुड़ के काम किया. There was no intention कि इसमें monetize किस तरह से करना है, इसको इसमें पैसे कैसे कमाने हैं. मैंने इस ग्रुप पे एक भी चीज बेचने के लिए कोई पोस्ट अप्रूव नहीं होने दी. तो बेसिकली द आइडिया वाज टू enforce the idea of empathy कि लोगों के मसले को समझें बजाय इसके कि आप इस मसले को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करें. आपको जो अमाउंट चाहिए आप किसी और जगह से कमर्शियल मार्केट्स में जाके ज़रूर पूछें बट नॉट ऑन दिस फोरम. इस फोरम पे आपको जो भी देना है वो आप फ्री में अवेलेबल करें. सही. सो स्टार्टिंग में कितने टाइम में प्लाज्मा अवेलेबिलिटी हो जाती थी टू पेशेंट्स, लाइक एनी? प्लाज्मा अवेलेबिलिटी नहीं इसमें देयर वाज नो टाइम फ्रेम. बेसिकली डॉक्टर्स कह देते हैं कि प्लाज्मा अरेंज करें और होता क्या है कि इफ लेट्स से अभी वो कहते हैं कि आप प्लाज्मा अरेंज करें तो हम उसमें उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर ने आपको डेडलाइन क्या दी है, कब तक हमने अरेंज करना है. सो दैट इज आवर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स. उतनी देर में हम मैनेज करते हैं उनको. और अगर 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम है, अगर बहुत अर्जेंट है अकॉर्डिंगली डील किया जाता है. कुछ ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमंस तो ह्यूमन एरर्स भी होते हैं लेकिन इसके अलावा हमारी जो मेन कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर दिया जाए. अब होता है इसमें यही है कि हम लोगों की जो एंड से मैक्सिमम प्लाज्मा डोनर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने का टाइम होता है 2 से 3 दिन. अगर 2 से 3 दिन तक से नहीं होता है तो वी रेफर द केस टू द अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके ऊपर काम कर रही होती हैं इफ दे कैन अरेंज. अदरवाइज वी अब तो हमारा इस तरह का सिनेरियो कि वी हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स ऑन बोर्ड. तो डॉक्टर्स की कम्युनिटी में जो वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स की काफ़ी हो चुकी है. तो दे कम अप एंड दे वॉलंटियर themselves कि वो प्लाज्मा डोनेट कर देंगे. सो दैट इज how we are tackling things right now. And you are also dealing with the equipments like ventilators and the oxygen cylinders and the medicines too. So how was what was the management about that? How did you manage that? अच्छा इसमें जो हमारी अवेलेबिलिटी के लिए जो लोग थे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज इन लाहौर देन Yeah. हम लाहौर में उन रेलेवेंट वेंडर्स के कॉन्टैक्ट्स लेके बैठ चुके थे. एंड द आइडिया वाज टू गेट ऑल द कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान और उन कॉन्टैक्ट्स को डिस्पर्स किया जाए रादर देन गेटिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स. हमने इसको इस तरह से मैनेज किया था कि अगर एक बंदा है उसको लाहौर में वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी चाहिए तो वी हैड द रेलेवेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स जिनसे हम एटलीस्ट ये ज़रूर राब्ता रखते थे कि उनकी उनके पास वेंटिलेटर अवेलेबल है कि नहीं है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है. अगर उनके पास होते थे तो हमारे डेटाबेस में ये ज़रूर लिखा आ रहा होता था कि इनके पास ये चीज़ की अवेलेबिलिटी है. एंड Yes. उनको फिर कनेक्ट किया जाता था टू द रेलेवेंट वेंडर्स. सो या इसको मैं दूसरी तरह से एक्सप्लेन करूं तो हम इस पे मॉडल को आगे भी लेके चल रहे हैं. सो बेसिकली ऑन दिस फोरम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज एज वेल जिसमें हम Yes. लोग नॉट जस्ट कोविड बट ऑल अदर health related issues can be discussed Yes. and you can order every equipment on this forum and that will be available to you all over Pakistan. Okay. Okay, what was the situation, मतलब पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी चीज़ों की कितने परसेंट थी? इन सब की अवेलेबिलिटी जो पूरी हो रही थी, नहीं पूरी हो रही थी, इवन प्लाज्मा, इवन वेंटिलेटर्स, इक्विपमेंट्स एंड इवन द मेडिसिन्स,
बिकॉज मैंने भी ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है एंड आई यूज टू बम्प जब भी कोई केस आता था और बहुत ज़्यादा आते थे इन आई थिंक सेकेंड वेव आई रिमेंबर दैट आई यूज टू बम्प अ लॉट ऑफ पोस्ट। तो ओके। पाकिस्तान में उस वक्त क्या अवेलेबिलिटी थी चीज़ों की, कितने परसेंट थी? तो ये भी एक चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। देखें, पहली पीक में तो अवेलेबिलिटी ऑनेस्टली किसी चीज़ की भी नहीं थी। वी वर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट, नीदर वाज द गवर्नमेंट नॉर वर द हॉस्पिटल्स। एंड हमारी जो हमारे एंड पे अगर देखा जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हमने इंश्योर करनी थी थ्रू डिफरेंट कनेक्शन। फोरम के होने का यस। फायदा ये था कि इफ इफ लाहौर वेंडर्स आर एग्जॉस्टेड और उनके पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, तो सरगोदा में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो डील करता है इसमें, तो वो अवेलेबिलिटी इंश्योर कर देता था। तो अवेलेबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज डेफिनेटली थे। इसमें अगर हम ये कहें कि अवेलेबिलिटी उस वक्त स्मूथ थी, तो नो, दैट वाज नॉट द केस। इट वाज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक एट द टाइम, एंड इट वाज वेरी exhausting for us. It was very डीमोटिवेटिंग फॉर अस के बहुत ज़्यादा ऑफिशियली भी सपोर्ट उस वक्त नहीं मिल रही थी, बिकॉज द गवर्नमेंट वाज नॉट रियली एबल टू मैनेज एवरीथिंग। और फिर हम इनको क्योंकि एक एक्सटेंडेड आर्म्स की तरह एक सपोर्ट दे रहे थे, और उस तरह से हम लोगों की मैनेजमेंट चल रही थी। सो दैट वाज प्राइमरली वन ऑफ द रीजंस के हमने देखा है कि पहली पीक में तो ऐसी मैनेजमेंट कोई भी नहीं थी। वी वर नॉट रियली प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट की कोई प्रेपरेशन नहीं थी। सेकेंड वेव में गवर्नमेंट वाज एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि हमारी सेकेंड वेव काफ़ी माइन्यूट तरीके से हैंडल हो गई। थर्ड वेव में वेरिएंट हमारा कुछ ऐसा है कि उसका रेप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है, और उसके रेप्लिकेशन रेट की प्रेपरेशन अगर देखी जाए तो वैसे तो बहुत अच्छी प्रेपरेशन थी। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे, हमारे काफ़ी सारे आइसोलेशन सेंटर्स को हॉस्पिटल बना दिया गया था, एंड ऑल अदर रिसोर्सेज वर अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। बट रेप्लिकेशन इतनी ज़्यादा है और लोगों ने केयरलेसनेस भी इतनी ज़्यादा की है कि कोविड केसेस इस कदर हमारे मल्टीप्लाई हुए हैं कि अल्टीमेटली दे वर नॉट रियली एबल टू मैनेज। हमारे इंजेक्शन शॉर्ट है इस वक्त। हमारे जो कोविड के बहुत असेंशियल इंजेक्शन हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे लगाए जाते हैं, वो यस। लोगों को आराम से नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के वी आर रियली वरिड के ये अगले 2 हफ्ते किस तरह के गुजरते हैं, बिकॉज वी वांट कि गवर्नमेंट इस चीज़ को मैनेज कर ले। बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इस चीज़ों को मैनेज करने का, एंड वी वांट देम टू मैनेज थिंग्स वेरी एफिशिएंटली एंड स्मूथली। ये पेशेंट्स की तकलीफ में और ज़्यादा तकलीफ ना ही ऐड की जाए। और सो स्टैटिस्टिकल डाटा अभी भी क्या है हमारे यहाँ पे कि आप अभी देख रहे होंगे कि कितने कोरोना पेशेंट्स कितने पॉजिटिव हो रहे हैं। व्हाट अबाउट दैट? कि अभी भी सिचुएशन मतलब अभी भी लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, और वो ध्यान नहीं दे रहे, मास्क यूज नहीं कर रहे एंड दे आर गोइंग टू द क्राउडेड प्लेसेस। सो इफ़ यू सी द डेटा, डेटा में बहुत सारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। डेटा हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये कि ऑथेंटिक नहीं है। कितने लोग टेस्ट करवाते हैं, उनकी परसेंटेज आई थिंक क्लोज टू नन। एंड हाउ वी गो फॉर टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए गवर्नमेंट की फैसिलिटीज में बैठे हुए डॉक्टर्स भी कुछ लोगों को उनके खांसी के सिम्टम्स होने के बावजूद भी ये कह देते हैं कि आपको कोविड शायद ना हो। तो अगर इस तरह का डेटा हो, इस्लामाबाद का डेटा बहुत बेहतर है। इस्लामाबाद इज़ वेरी वेल मैनेज्ड, एंड इस्लामाबाद का डेटा ऑर्गेनाइज होने का रीज़न ये भी है कि वो एक प्लान्ड सिटी है। बाकी सारे सिटीज़ अनप्लान्ड है। कराची, यस। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये सारे अनप्लान्ड सिटीज़ हैं, जिसकी वजह से उनको मैनेज करना इज़ वेरी हार्ड फॉर द गवर्नमेंट। अगर हम यस। इसको देखें स्टेटिस्टिक्स को, तो हम पॉजिटिविटी की परसेंटेज देखें, तो वो तो डेफिनेटली नेशनल लेवल पे अब कम हो रही है। और हमारी वी आर प्रॉबेबली, मैंने देखा है कि कल और परसों का जो हमारा डेटा था वो रिलेटिवली 1 या 2% कम हो गया है पॉजिटिविटी। बट
that doesn't really mean कि हम थर्ड वेव से अब निकल जाएंगे. इसका ये एक Yes. हो सकता है छोटा सा डिप आ रहा हो एंड देन दोबारा स्पाइक करे, क्योंकि पूरी दुनिया में तो बहुत बुरी स्पाइक है. हमारी स्पाइक Yes. जो है वो अभी फर्स्ट पीक के बराबर पहुंची है. तो आई एम Hmm. लिटिल डाउटफुल अबाउट द डेटा. अगर ये इससे ऊपर नहीं जाती, अगर इससे ऊपर जाती है, अल्लाह ना करे वैसे ये जाए, बट ये अगर इससे ऊपर जाती है तो ये एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड के मॉडल्स को ही फॉलो करी होगी, क्योंकि यूके, इंडिया एंड ऑल अदर कंट्रीज जिनमें यूके वेरिएंट आया था, वो उनकी थर्ड वेव वाज स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट एंड द सेकंड वेव. भी लाहौर में पॉजिटिविटी इज 17%, विच इज Yes. लेस देन बिफोर. और अभी इस्लामाबाद में पॉजिटिविटी इज अराउंड 5 to 6%. एंड उसके अलावा हमारी जो बाकी जो कराची अब अभी तक हिट नहीं हुआ, तो आई एम एज्यूमिंग कि कराची हिट हो सकता है. और अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो वो बहुत उसमें भी यही क्राइसिस होगा जो लाहौर, पिंडी और ये बाकी पंजाब में आया. Hmm. इनफैक्ट केपी में भी. I see. So, Zuresh, now we will talk about the availability of vaccine. There are like four vaccines available in Pakistan: China vaccine, Russian, Oxford बिल्कुल. University. So, आपको क्या लगता है कौन सी वैक्सीन इस वक्त आप लोगों के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं या आप लोग अवेलेबल कर रहे हैं, और लोग क्या वैक्सीन यूज कर रहे हैं? दे वांट टू नो दैट. सो बेसिकली अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ी सी रीजनिंग बता दूं. आई एम श्योर सिंस यूर फ्रॉम द ऐप आपको मेडिकल के सारे वो उसका नॉलेज होगा. बेसिकली हमारा जो यस. ग्रुप है, इट इज नॉट अ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो वी आर नॉट रियली लाइसेंस्ड टू distribute any kind of vaccine as of now. We do have plans. We are going to have a huge target of vaccination, because हमारे यहाँ ब्लूमबर्ग ये क्लेम करता है कि हम 10 साल तक पाकिस्तान को 70-80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे. तो वे यस. बेसिकली टारगेटिंग कि हम इस नोशन को, पूरी दुनिया के नोशन को ये तोड़ दिया जाए कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री जिसको आप इतना लाइट लें. if we if the organizations like us are able to mobilize, तो हम इस नोशन को जरूर, अगर 10 साल नहीं तो 5 साल तक तो जरूर लेके आ सकते. तो यही टारगेट है. डेफिनेटली इट इज इन द प्रोसेस. अवेलेबिलिटी डेफिनेटली होगी, इस फोरम के थ्रू भी होगी. एंड ये कौन सी होगी ये अभी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम 2-3 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाह रहे हैं. तो बेसिकली द प्लान इज टू वैक्सीनेट द मैसेज, बट कॉस्ट इफेक्टिव रहते हुए. उनको नाजायज यस. मुनाफा कमाने का हमारा एजेंडा नहीं है. एंड वी वांट के एक मुनासिब सी हमारी जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट आएंगी, जो ह्यूमन पावर जो यूज होगी इसमें, बस उसकी जो कॉस्ट आएंगी उसको मैनेज किया जाए. एंड प्रॉफिटेयरिंग का कोई इसमें हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते. दैट इज द गोल. एंड वी विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 or 3 years. इसको मैनेज हम लोग पूरी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इट इज इन द प्रोसेस. डेफिनेटली ये होगा. वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी की अगर आप बात करें, तो इस वक्त तो हमारे पास कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. अगर आप जनरली भी गवर्नमेंट की भी बात करें, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज बेसिकली स्ट्रगलिंग विद इट, बिकॉज वी आर द नेशन जिसने कभी भी अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करने की कोई कोशिश नहीं की. एंड इफ वी टॉक अबाउट हाउ वेल आर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज, तो हमने अपने यहाँ होने वाले प्रोटेस्ट को भी देखा है कि उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है. हमारे सोशल मीडिया को भी ब्लॉक किया जाता है, एंड हमारी 4G को अभी तक रिस्टोर नहीं किया जा रहा. तो हमारे यहाँ मिटिगेशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती किसी भी चीज की. जब क्राइसिस आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट का ये होता है कि चलो जदों आएगी बेखी जाएगी. तो Yes. that is not how one should be dealing with these things. Yes. We should be able to make a risk matrix of everything, so that we know कि किस चीज की probability है. हाँ, अगर ये मसला आएगा तो इसको किस तरह से मैनेज करना है. किस तरह से That मैनेज?
that is primarily the summary of everything related to vaccine. Yep. सो लोग आपसे वैसे भी कांटेक्ट कर रहे होंगे फॉर वैक्सीनेशन कि आपके पास अवेलेबल हैं, सो वी वांट इट डेफिनेटली बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज रिगार्डिंग कोविड. सो आप सबसे Yeah. पहले किस ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं थ्रू वैक्सीनेशन? मेरा टारगेट है कि जो जिन लोगों को कैंसर है, डायबिटीज है या कोई और बीमारियां हैं, वो चाहे 10 साल का है, 5 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, जब ग्लोबली वैक्सीन उनकी अवेलेबल होंगी बच्चों की, तो हम उनको उनको टारगेट करेंगे. बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये 18 साल से बड़े लोगों के लिए अवेलेबल है, तो हम 18 से 60 या 18 से 70 जो भी एज होगी उसमें हम उनको टारगेट करेंगे जो किसी न किसी बीमारी का शिकार है, ताकि उन लोगों को भी बताया जा सके. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग इसमें बहुत बुरी तरह फंसते हैं, एंड आवर टारगेट है कि हम को सेव करें. तो या प्राइमरली दिस इज द टारगेट. आई सी. सो वैसे आपको क्या लगता है कि आर पीपल रिलक्टेंट टू यूज वैक्सीन बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स? और वैसे भी अभी बहुत सारे लोग तो पोलियो वैक्सीन यूज नहीं करते अभी अभी तक. पोलियो से फाइट कर रहे हैं हम पाकिस्तान में, तो अब ये कोविड है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये वैक्सीन जो है हमें बाद में साइड इफेक्ट्स दे सकती हैं. तो इस ये आपका एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों में, यू आर रनिंग अ प्लेटफॉर्म, कि लोग इस वक्त पेशेंट्स के क्या जो है वो व्यूज हैं इससे रिलेटेड? मिथ्स इस पे बहुत ज्यादा है. Unfortunately, we don't really read what is being said by the peer-reviewed journals of vaccines. अगर हम उनको पढ़ें तो that will clear most of our confusions. और हमारी जो myths हैं या हमारे यहाँ conspiracy theories हैं, और ये सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत ही ज्यादा है, कि इंडिया यस. पाकिस्तान हमारे यहाँ 5G की माइक्रो चिप्स को इंस्टॉल कर देते हैं. ये समझते हैं हम लोग के हमारी बॉडीज में ऐसा कोई सोना है जो अमेरिका को चाहिए कि हम $10,000 की हमारी बॉडी भी बिकेगी. तो ये हमारे यहाँ एक ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आई वाज लिसनिंग टू अ व्हाट्सएप वॉइस नोट इन इन वन ऑफ द ग्रुप्स, जिसमें वो कह रहा था बंदा कि ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਹੈ. So people are actually creating confusions like this, and they don't really know. And इसमें हमारी लिटरेसी रेट का भी बड़ा फैक्टर है. इसमें यस, एजुकेशन का डेफिनेटली. हम देखें कि ये देखें, ये कहीं ना कहीं से स्टेम होते हैं इश्यूज. और इसमें अगर हम यस. आपको इस बड़ी पिक्चर को अंडरस्टैंड करें तो ये लिटरेसी का रेट कम क्यों है. किसी भी गांव में जब कोई जागीरदार होगा, जब वो लैंडलॉर्ड होगा या कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होगा, तो बिल्कुल. वो अपने इलाके के लोगों के दिमाग के अंदर कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं आने देगा कि वो उससे सवाल करें कि तुमने ऐसे क्यों किया. यस. वो उसको वो उन्हें डम्ब रखेंगे, मैनिपुलेट रखेगा बेसिकली. उसे मैनिपुलेट करने के लिए इलिटरेसी को वहां पर रिटेन करेंगे. तो इस बिल्कुल. तरह के लोगों की वजह से पाकिस्तान में मिथ्स बहुत ज्यादा चलते हैं. तो यस. जिस तरह की फिर अच्छा, इस तरह के इशू के अंदर खौफ आपका बहुत ज्यादा तारीख करने के लिए आप मैनिपुलेट कहीं से भी कर सकते हैं. आप उनके अंदर ये भी सेंस ऑफ फेयर डाल सकते हैं कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, आप एक्टेमरा का इंजेक्शन ना लगवाएं, आपको अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो कोई टीका लगेगा तो आपको मार दिया जाएगा. इस तरह की यस. चीजों को असल में ये एक पूरी फिलोसफी है. इफ यू आर नॉट रियली श्योर, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी था, तो आई नो कि ये डोमिनेट करने की स्ट्रेटजी होती है. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू यस. समवन, तो यू हैव टू डोमिनेट, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट, आप कुछ भी कह दोगे उसे, वो कहेगा अच्छा इसके यस. पास तो कोई ये इन्फॉर्मेशन है, इसके पास कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आई है. So that is one way of That's dominating in the society. So yeah, deviating from the topic, but this is the psyche. हमारी illiteracy का बहुत बड़ा रोल है. हमारे फोरम पे भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं है. बट yes. हम उनको क्लियर करने के लिए डॉक्टर्स को एंगेज करते हैं. डॉक्टर अमदाद अली फारूकी को मैं मेंशन करना चाहूँगा. ही इज वन ऑफ द बेस्ट pulmonologists in Lahore, and he has been providing services for this forum
फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वो किसी भी शख्स को आप अगर उन्हें अप्रोच करना चाहें तो ही इज़ वेरी वेरी एक्सेसिबल। उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी जो वीडियोस हैं वो हमारे ग्रुप पे अवेलेबल हैं, एंड ही हैज क्लियर्ड ऑल द मिसकंसेप्शंस अराउंड वैक्सीनेशन, एंड ही इज ट्राइड टू क्लियर द मिथ्स सराउंडिंग कोविड वैक्सीनेशन एंड फिर ये पोलियो की वैक्सीनेशन। मतलब उन्होंने ट्राई किया कि पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस समझाएं कि वैक्सीन बनती कैसे है, आप इस प्रोसेस को समझ जाएं, वो लोगों को बताना यही चाह रहे हैं। तो या द ओनली वे आउट इज टू एजुकेट पीपल, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरह से इस मसले को हमने देखना है। तो आपने इसके लिए कोई अवेयरनेस स्ट्रेटजी प्लान की है कि जब आप वैक्सीनेशन का पूरा एक पोर्टल जनरेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको, तो उससे पहले जो अवेयरनेस है बेसिकली लोगों में कि दे शुड वैक्सीनेट देमसेल्व्स, जो कर सकते हैं बेसिकली, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली करें। देखिए, इसमें जब आप गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करते हैं तो यू टॉक अबाउट डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ डिसेमिनेशन। अब हमारी डिसेमिनेशन स्ट्रेटजी क्या होगी कि हमारी डिसेमिनेशन में पेमरा के इंक्लूडेड चैनल्स भी होंगे, जिसमें गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करेगी कि वैक्सीन को किस तरह से लगवाना होता है एंड इसका फ़ायदा क्या है। देन आप सुनते हैं अपने फोन्स पे बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर कोविड की अवेयरनेस होती है, तो उसी में ही वैक्सीनेशन की अवेयरनेस शुरू हो जाएगी as soon as the waves of COVID settle, एंड ये हमारे कुछ कोर होंगे तरीकाकार जिसमें हम इसमें मैनेज कर सकेंगे द अवेयरनेस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन. Apart from that, we are definitely going to engage the social media influencers, and we are going to engage. देखिए, हर population segment में एक different medium use हो रहा है. अगर इंस्टाग्राम आप देखें तो Yes. इंस्टाग्राम एक एलीट में यूज हो रहा है, फेसबुक एक अपर मिडिल एंड एलीट यूज कर रही है, और टिकटॉक और ये सारे फोरम्स जो है ये मिडिल और उससे नीचे वाले इंक्लूडिंग एलीट, मतलब ये हर तरह के फोरम्स। तो बेसिकली हर तरह का बंदा जिस जिस फोरम पे अवेलेबल होगा उसके इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जाएगा टू डिसेमिनेट द मैसेज ऑफ वैक्सीनेशन. We will do that, and we plan to do that. इसका तो कोई डाउट ही नहीं है. That's really great. I mean, you are planning all the strategies and working for our country effortlessly. That's really great, mashallah. So Thank you. we will go towards के आप क्या future देख रहे हैं towards COVID, कि कितना ये अब जो है वो होने वाला है या नहीं होने वाला, या खत्म होने के कितने चांसेस हैं, हम कैसे इससे निकलेंगे? फ्रैंकली बताऊं तो हम इससे नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन रेट काफ़ी स्लो है, और हमारे यहाँ लोगों में इस चीज़ का एहसास बहुत कम है कि कोविड एग्जैक्टली कितना डैमेज करता है. इसकी अवेयरनेस के ऊपर जितना मर्जी सेशंस कर लें, इसकी अवेयरनेस के ऊपर जितना मर्जी गवर्नमेंट अपने forums को use कर ले, people don't really care. People are probably tired of dealing with the pandemic. They don't really want to wear masks. They don't really want to isolate. They don't really want to uh, avoid all the social कल्चर्स जो हमारे इसमें सोसाइटी के अंदर हैं, हाथ मिलाना, गले मिलना, इकट्ठे बैठना, नमाज में बिल्कुल साथ जुड़ के नमाज पढ़ना, ये सारे वो चीज़ें जो हमारे कल्चर में है, एंड पीपल आर एक्चुअली टायर्ड ऑफ कोविड और उसकी कॉन्वर्सेशन से ही थक चुके हैं लोग. व्हाट दे वांट टू लिसन टू इज के अच्छा वैक्सीन कितने लोगों को हो गई है, वैक्सीनेशन हमारे लिए कब अवेलेबल होगी, अच्छा कोविड खत्म कब हो रहा है, अच्छा कोविड सेटल हो चुका है. दे जस्ट वांट जस्ट, जैसे कहते हैं ना, आंख पे एक पर्दा रखते हैं ना, वो अब हो रहा है, एंड पीपल डोंट रियली केयर के इसका इम्पैक्ट क्या होगा. इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता दूं यही होगा जो अब हो रहा है. अफ्रीका का नया वेरिएंट आ चुका है, ब्राजीलियन एक नया वेरिएंट आ चुका है. कल मैं एक पढ़ रहा था कि इंडियन एक नया म्यूटेंट आ चुका है, और इंडियन म्यूटेंट जो है दैट इज फार मोर डेंजरस दैन द यूके वेरिएंट.
अगर ऐसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा इंडिया के साथ कोई बहुत ज़्यादा वो ट्रैवलिंग नहीं है, अदरवाइज हम बहुत बुरी Yes. तरह फंस जाते हैं। बट नेवरदलेस इफ इट रीचेस पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं होगा कि वो पाकिस्तान कभी पहुंचेगा ही नहीं, वो जब भी पहुंचेगा तब Yes, पाकिस्तान में definitely. डिजास्टर एक नया आ सकता है। So we have to speed up our vaccinations. If we lag behind, then we're definitely going to suffer. और वो हमारी फोर्थ वेव बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। Yes. इंग्लैंड यूके इज प्रिडिक्टिंग फोर्थ वेव। वो अपनी टाइमलाइन दे चुका है कि नवंबर दिसंबर में कोई नया वेरिएंट आ सकता है विच माइट डैमेज द इकोनॉमी एंड द सोशल सेगमेंट ऑफ यूके। तो अगर वो फोर्थ वेव कर रहे हैं प्रिडिक्ट, तो हम तो मास्क भी नहीं पहनते हमारे यहाँ, तो तब तक मेरे ख्याल में पांचवी छठी वेव आ चुकी होगी। True. यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, असल में लोग इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि दिस इज लाइफ नाउ, यू हैव टू गो ऑन विद इट, कि आपने Yeah. इसी के अंदर सेफ्टी मेजर्स यूज करने हैं और आपने उसी के साथ जो है वो चलना है, अपने सारे काम आपने उसके साथ करने हैं, आपने अपना भी एहसास करना है, अपने अपने साथ वालों का भी एहसास करना है, वेदर वो अपनी फैमिली है या वो कोई स्ट्रेंजर है। तो ये चीजें जो हैं, लोग मेंटली अपसेट हो गए हैं बेसिकली, एक साल घर रह के उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है कि लोगों में अब एनर्जी नहीं है, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द थिंग्स। सो वर यू डीलिंग विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज जो लोगों में हो रहे थे कोविड से रिलेटेड हमने एंड ऑल दैट स्टफ? हमने साइकोलॉजिस्ट्स को एंगेज किया था अपने ग्रुप पे, और हमने लाइव सेशंस भी रखे थे। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स को ये तलकीन की थी कि अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करें उन लोगों के लिए जो कोविड में आइसोलेशन में रह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम एटलीस्ट अपने रिसोर्सेज को एटलीस्ट मोबिलाइज कर सकें कि चलें मेंटल हेल्थ के लिए आपके पास ये बंदा अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू हिम एंड ऑलवेज रीच आउट टू हिम। इस तरह के दो तीन लोगों को हमने एंगेज किया था। बट थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। मैं थर्ड वेव में ऑनेस्टली मेंटल हेल्थ का कंपोनेंट बिल्कुल मेरे जहन से निकल चुका था। आई विल ब्रिंग इट बैक, और ये इंशाल्लाह मैं दोबारा करूंगा। मेंटल हेल्थ इज अ ह्यूज इशू। ये दिस इज द नेक्स्ट इम्पेंडिंग क्राइसिस इन द वर्ल्ड, एंड many people are already suffering from it किसी न किसी फॉर्म में। हम देखें तो हम Yes. जनरली लेथार्जिक हो चुके हैं, हम भी, मैं भी, Yes. शायद आप भी, बट जनरली लेथार्जिक हो चुके हैं। वी डोंट रियली वांट टू वर्क, we just Yes. want to run away from the daily life issues, and we just want to escape from the reality. We just want कि हमारी को 10 days की वेकेशन हो जिसमें हमें कोई कुछ ना कहे और कोई हमें जानता ना हो। So that is one component of our mental health. So ये तो चले minute issues हैं, but actually people are suffering from depression and all the Yes, major a lot of depressive disorders. They are huge, and I would rather say कि आपकी जो medical app है, for sure if it focuses on the mental health issues, तो ये next impending yes, health crisis definitely. है, ये आगे बढ़ेगा। So you can definitely help out people on this front as well. Yes, we definitely have the best psychologist and even psychiatrist on board, and we are gonna do it definitely, inshallah. सो And मेंटल हेल्थ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर हुआ है इन अ वे कि स्टूडेंट्स भी अब एजुकेशन पे इसका जो इफेक्ट हुआ है कि स्टूडेंट्स दे डोंट वांट टू नाउ स्टडी, वो ऑनलाइन ही एग्जाम्स और ऑनलाइन ही हर चीज़ पे खुश हो गए हैं, और व्हेन दे नो कि अब फिजिकल होने वाला है दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ हमारे कंट्री में होना शुरू हो हाँ, जाता है। दे गो ऑन विद हाँ, इट। बिल्कुल। उसका उसका रीजन आपको भी पता है क्या है, मुझे भी पता है उसका रीजन क्या है। यस। ये ऑनलाइन ऑनलाइन असल में बात वही है कि बच्चे भी ठीक कहते हैं, बट उसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं कि हमें यस। पेपर्स ना देने पड़े, हमें असाइनमेंट्स में ही काम हमारा खत्म हो जाए, या फिर अगर पेपर्स देने भी हैं तो ऑनलाइन दे दें ताकि हमारे पास के पूरे मैकेनिज्म अवेलेबल मेहनत हो, ना करनी पड़े बेसिकली। मेहनत ना करनी पड़े। तो दैट इज डेफिनेटली वन कंपोनेंट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ अगेन। हमारी अगर स्टेबिलिटी हो जिंदगी में और हमारी जिंदगियां नॉर्मल चल रही हो, देखें ये एक नई चीज थी, ऑनलाइन क्लासेस एक नई चीज है। हमारी आंखों और हमारे कान को इतनी आदत नहीं है कि वो इतनी देर एक 6 घंटे की क्लासेस ले, सुने यस। और एब्जॉर्ब करे और उस इंफॉर्मेशन
में फोकस भी रखे। वो फोकस आपका जनरली आपकी जो स्टडीज हैं वो तो कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि आपको 20 मिनट्स के बाद ब्रेक चाहिए होती है, कुछ स्टडीज कहती हैं आपको 40 मिनट्स के बाद ब्रेक चाहिए Yes. होती है। तो अगर आपको 6 6 घंटे स्क्रीन पे देखना है जो आप वैसे भी फोन्स पे देखते रहते हैं, तो डेफिनेटली योर बॉडी इज नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ये मेंटल हेल्थ का एक क्राइसिस है जो इसकी तरफ आ सकता है। मीन्स प्रैक्टिकल, बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वही लेथार्जिक हो गए एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। उनको मोटिवेशन भी Yeah, नहीं आ रहा बेसिकली कि ऐसे ही हम है। पढ़ें एंड वी शुड डू समथिंग। मोटिवेशन का भी बहुत ज़्यादा जो है वो इशू है कि नहीं आ रहा है, जिस पे इस पे भी बिल्कुल हम ऐसे लोग, हमें बेसिकली हमें आपको हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं तो हमें मोटिवेट बेसिकली स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें, और इवन कि कोविड में भी रोल प्ले करें एंड ऑल्सो इन देयर एजुकेशन। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आई टोटली एग्री। So we are now going to the end of our session. Uh, Anything you want to say about our platform? Your platform is Any great, few words? and definitely this is the future. The online medical apps and the online medical forums are the future. You guys are doing great. आप लोगों की जो services हैं, ये for sure in the future they will play a huge role in covering the crisis of health, और जितने आने वाले खुदा न खास्ता पेंडेमिक्स हैं उनमें ये डिजिटल Yes. सारे forums जो हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे in central communication and availability of health Yes. resources. So yeah, your app is definitely one of the future. And the second thing that I would want to do is आपके comment section में एस एन रजा का एक comment है कि can you tell about recovery ratio by using of plasma. So एस एन रजा, that is a very nice question. इस क्वेश्चन का Yes, we आंसर मैं can. इस तरह से आपका दूंगा कि जो हमारे यहाँ जो फोरम पे जितने ग्रुप में प्लाज्मा डोनर्स थे जिन्होंने डोनेट किया, पेशेंट्स की कंडीशन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। अगर रेशो आप देखें कि जो माइल्ड टू मॉडरेट थे लोग, तो जैसे डॉक्टर ताहिर शम्सी का मैं डेटा आपके साथ शेयर करूँ तो ही सेज़ के माइल्ड टू मॉडरेट वाले जो लोग थे, उनके अंदर अगर प्लाज़्मा डोनेशन का प्रोसेस हुआ था, तो उसकी रिकवरी 92 से 96%, 92 से 96% लोगों में प्लाज़्मा ने बेनिफिट किया। बट अगर हम मॉडरेट टू सिवियर वाली कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ पर क्या Okay. प्रैक्टिस चल रही थी कि इसके बारे में क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को, एंड लोगों को ज़्यादा इसके बारे में आगाही दी भी नहीं जाती। इसको लगाया जाता है जब पेशेंट बिल्कुल वेंटिलेटर पे पहुंचने वाला होता है या उसको एक टेमरा के इंजेक्शन लग चुके होते हैं। एक टेमरा का इंजेक्शन वो इंजेक्शन होता है जो बिल्कुल आप Hmm. कह लीजिए वन ऑफ द लास्ट ऑप्शंस अवेलेबल। तो Hmm. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बचाती है। कैमरा भी बचाता है, रेमडेसिविर भी बहुत बचाता है, प्लाज्मा भी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर असर करता है। तो हमें अगर रेशो की बात करें तो डॉक्टर ताहिर शमसी ने तो प्रॉपर इसके ऊपर ट्रायल किया था, जिस पे उनको गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला था, हमारे एनडीएमए के चेयरमैन ने दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि माइल्ड से मॉडरेट में आप लगवा लें तो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। बट इफ यू आर मॉडरेट गोइंग फॉर द मॉडरेट टू सवेयर पेशेंट्स देन उसके कम चांसेस हैं, और सवेयर से बिल्कुल ही एक्सट्रीम पेशेंट्स में अगर आप जाते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप इंटरनेशनल फोरम्स को देखें और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी का पेपर देखें तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसे फोरम्स हैं जो प्लाज्मा थेरेपी को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी नहीं Okay. होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर द बॉडी। नाउ आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द साइंटिफिक रीजनिंग बिहाइंड इट, बट मैं सारी की सारी चीज़ें अप फ्रंट अपने फोरम पे भी लगाता रहता हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस Hmm. रहे कि क्या नई रिसर्च आ रही है। इफ द रिसर्च इज सेइंग कि दिस इज समथिंग दैट यू शुडंट ऑप्ट, देन यू शुडंट ऑप्ट। Hmm. इसको आप बट ये या दिस इज अगेन समथिंग जो हमें भी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स ही इसको कुछ अगेंस्ट हैं, डॉक्टर्स ही इसकी कुछ फेवर में। So we don't really know okay Yes. what is right and what is wrong. We just facilitate the Wrong. connection and we just try to facilitate the
अवेलेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा डोनर्स, अगर हमारे पास कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है कहीं से, तो बस Yes. ये आपका एक तरीकाकार है। तो या सो इफ यू हैव टू ask my last message for the viewers and the app. You guys are doing great job. Thank you so much for having me, and thank you so much everyone for watching me, whoever is watching me. And बस इसी तरह ही चलते रहें, डिजिटल फोरम्स को एक्सपैंड करते रहें, and do let me know about the collaboration that you guys have. बस कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेशन हो तो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि हम Yes, अपने फोरम को definitely. यूज करें, और आप लोगों की ऐप को आगे अगर प्रमोट करना है तो हम लोग वो भी करें। Yes, we will definitely approach you for collaboration. Definitely, because we are almost working for the same cause. We are basically helping curing people, whether it's COVID or other medical conditions. Yeah, We both are playing role basically in the health sector of Pakistan. I agree So, totally. Azrael, yes, we highly appreciate your heroic contribution towards Pakistan and us, and we appreciate you that you have given us time on our platform, Hola Cure. You are the hero of this country, and we wish you good luck. And we pray that you go on with this and you have a great future ahead. और हम कोरोना से बहुत अच्छा battle करें with the help of you and your platform. Thank you so much. Thank you very much, Rasna, And for thank you so much. yeah. So thank you very much, Rasna, for all these comments. You've been very kind. Thank you No, very much. इतना you इतना are मैं the डिजर्व नहीं inspiration. करता, इतना Oh, मैं डिजर्व definitely. नहीं करता, बस थैंक यू वेरी मच। No, you are the inspiration for this youth. This youth should know that we have to go towards this way. Thank you, People are admiring you. They're featuring you. You are like the hero of this country for this specifically COVID pandemic, and we thank are you very much. grateful. Very, very, very kind of you. Thank you. Thank you, viewers, for staying with us. We will meet you again with another session. Stay tuned. Hello, Hola Cure, say hello to Cure. Allah Hafiz.